हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So we are sitting here for getting orientation about Barsana camp. Barsana camp is having two parts. One is dental camp and one is eye camp. The dental camp happens for 4 days. This year from 2nd, 3rd, 4th and 5th of February. Every year also 4 days, whichever days are there. And the eye camp happens for generally 2 weeks, but now onwards it will be 3 weeks minimum. So 1st February to 20 February, the eye camp will go on. And apart from the camp, throughout the year, the hospital will keep serving patients free of charge, all throughout the year. Only camp is operating big number of people at short time. But otherwise, 30-40 patients are operated every day. But camp may 110, 120 also can be operated per day. Because more doctors, more staff, more volunteers, everybody is there, so high speed work is going on. So you will be participating from which date to which date? So you will be able to see the dental camp also, and so you will not see dental camp, but dental camp I will tell you, you may not see, may see. What do they do is number one, they do 4 services. One service is to remove the spoiled teeth. It means completely बोलते ना सड़ गया वो उसका दांत, तो वो दांत को उखाड़ देते हैं, क्योंकि वो दांत का कुछ काम नहीं है तो उखाड़ देते हैं. तो वो एक बड़ा काम है. लोगों के मुंह में 5-5, 6-6 दांत होते हैं ऐसे जो उखाड़ने चाहिए. So they will remove the teeth and that service is over. Second service is many people have stained teeth. They eat tobacco, they eat pan, or they do so many things. The stains take place, stains. The teeth appears red or brown or yellow. So there's a scaling machine is there. With that they remove all the stains and the teeth shine again, like without having tobacco or anything. This is second service. Third service is there are many people like you also have holes in the teeth. What is it called? Caries. Caries, cavity. Cavity is khadda, but caries is a disease. Some bacterial infection is there. That's why the teeth is eaten up, and there is a cavity. And cavity exposes the nerves. It's very painful. If you drink water, it's like current goes so much because nerve exposure is there. So they fill up that cavity also. It's called filling. So one is extraction, second is scaling, third is filling, and fourth is all those people who have removed all the teeth, no teeth in the mouth. Generally 6 months are over, then everything heals. We remove some teeth, then the wound is there. You can't immediately put new teeth there. So after removal of all teeth, almost 6 months are gone, then the gums are healed. And then we make for them in the camp free denture, दंतमाला बनाते हैं उनके लिए. भारतवर्ष में किसी भी जगह पर जाएंगे तो ये सेवा कोई नहीं करता है, क्योंकि एक माला बनाने के लिए, दांतों की माला 32 बनाने के लिए 7,000 रुपया खर्चा है. केवल खर्चा ही खर्चा है, कोई बिजनेस नहीं है. बाहर बनाओगे तो 10, 15, 20, 25 हज़ार तक भी बनता है, क्योंकि वो उनका प्रॉफिट होता है. बट कॉस्ट टू कॉस्ट अगर देखेंगे तो उसको मिनिमम 7,000 खर्चा है. हम लोग हमारे कैंप में एक लैबोरेटरी बनाते हैं, उधर सेट करते हैं उसको, प्रयोगशाला. And 24/7 these people, technicians, they come from Delhi, Mumbai, and they work 24/7. They don't go out at all, because one denture takes sometimes 1 day, and there are many people making one denture. So if they have to create 110 dentures, 110 दंतमाला बनानी होगी, तो उनको दिन रात 7 दिन काम करना पड़ता है. और at the end of the 4 days they will be ready with all the dentures, and then I will go and fit it in the mouth of everybody. तो एक विधि होता है पूरा, उनका नाम लेबल रहता है. फिर मैं ग्लोव्स चेंज करता हूँ, हर बार उनके मुंह में हाथ डाल के वो सेट करता हूँ.
उनको दवा देते हैं ताकि उनको दर्द ना हो। बहुत बड़ा काम है ये, दिन रात काम करते हैं। अराउंड 3000 पेशेंट्स दे ट्रीट। उखाड़ना, फिल करना, स्केल करना, ऐसे 17 से 18 डॉक्टर एक साथ में काम करते हैं। हमारे यहाँ कैसा, एक क्लिनिक में एक डॉक्टर काम करते हैं, वहाँ पर 17 चेयर लगे हुए हैं, सब प्लम्बिंग, सब कुछ है उधर, एवरीथिंग टेम्पररी पूरा बना के रखा है, पूरा ड्रेन विन सब बना के रखा है। बहुत अच्छा काम करते हैं, आप लोग देख सकते हैं जाके पीछे। और आंखों में भाई 92 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। 92 में सबसे पहले हम लोग घूमते घूमते वहाँ गए थे दर्शन करने के लिए, राधा रानी के धाम में। तब उन्होंने हमको बोला, वहाँ के लोगों ने, कि आप लोग क्या करते हो। हमने कहा कि हम लोग मेडिकल स्टूडेंट अभी पास हो गए हैं, MBBS हमारा हो गया है। और वहाँ पर क्या करते हो। अभी हम लोग गांव गांव में कैंप करते हैं, आदिवासी इलाके में, पालघर में, ढाणू में, इधर उधर कैंप करते हैं। तो इधर क्यों नहीं करते, इतना दूर है यहाँ से, 1500 किलोमीटर दूर है, वो तो 100 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने बोला, हमारे यहाँ पर लोग अंधे होते हैं बहुत लोग, ट्रीटमेंट नहीं होने से। कोई दवाखाना नहीं है यहाँ पर, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नॉलेज भी नहीं है क्या करना होता है। तो अंधा होना पसंद करके अंधा ही रहते हैं और अंधे में मर जाते हैं। तो हमने गुरु महाराज की ओर देखा, जो हमको लेके गए थे। उन्होंने कहा यस। तो फिर हमने 92 में सबसे पहला कैंप लगाया वहाँ पर। तभी हम लोग यहाँ पर केवल 25-25 कैंप लगाते थे, यानी एक कैंप में 25 ऑपरेशन करते थे। शनिवार को एग्जामिन कर लिया, रविवार को एडमिट कर लिया, रविवार को एडमिट करके ऑपरेट भी कर लिया, और 4 दिन रखा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। वो उधर का नियम था, उस टाइम का नियम वो था। अभी टेक्निक बदल गए सब। और थर्सडे को फिर सब लोगों को डिस्चार्ज करते थे, पट्टी निकालते थे। 4 दिन मैं खाना बनाता था उनके लिए, सुबह शाम ब्रेकफास्ट डिनर देता था, खुद खाना बनाता था, फिर राउंड लेता था, फिर पट्टी बदलता था। यानी डॉक्टर भी, कुक भी, सब काम करता था। और लास्ट डे को फिर सबको हम लोग चश्मे बांटते थे, दवाई देते थे, 40 डेज की दवा देते थे। तो हमको खाली 25 लोगों का एक्सपीरियंस था। जब पहला काम किया ना, तो पहली ही बार हमने 185 ऑपरेशन किए, 185। बहुत बड़ा जंप था हमारे लिए, क्योंकि नई जगह, गांव, फिर फैसिलिटी नहीं है, लाइट नहीं है, ठंड तो ऐसी थी, बर्फ की जैसी ठंड थी। उसका भी एक्सपीरियंस नहीं था, हमको पता ही नहीं था। हमको मुझे लगा जनवरी का अच्छा रहता है, ठंडा रहता है मौसम। कहाँ पर, मुंबई में अच्छा रहता है, यूपी में जाओगे तो बर्फ गिरने जैसा मौसम होता है। उनको पता नहीं था। उस ठंड में हम लोग ने, सब जवान बच्चे, लड़के लड़के थे हम लोग, सब लोग जस्ट पास किए हुए MBBS। लेकिन उसके बाद में फिर वो 220 हो गए, उसके बाद में फिर 280 हो गए, फिर 480 हो गए, ऐसा करते 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 बढ़ते गए हमारा कैंप। लेकिन वो वार्षिक ही था, हर साल ही जाते थे और आते थे वापस। लोग बोलते थे, अरे आप जा रहे हो, हमारा ऑपरेशन तो नहीं हुआ, अभी कभी आओगे। हम लोग अगले साल आएंगे। तो तब तक हमारा क्या होगा, हम अंधे हो जाएंगे। तो हमको लगा कि इनका क्या करेंगे। फिर 2007 में हमने क्या किया, मंथली कैंप शुरू किया। एनुअल जाना है, एक साल में जाना ही है, उतना ही बड़ा नंबर करना है, लेकिन महीने में भी जाना है, और 100 ऑपरेशन करके आना है। तो 10 महीने, हर महीने जाकर 100 करेंगे तो कितना हो गया, 1000 हो गया। कैंप में 750-800 हो गया, तो 1800-2000 हमारा होता था। लेकिन फिर भी लोगों का सेवा पूरी नहीं होती थी। कुछ लोग बचते थे, बोलते हमारा कब होगा। अभी हम जा रहे हैं, अभी टिकट भी निकल चुके हैं, हमारा काम भी खत्म हो गया अभी। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पर ना परमानेंट हॉस्पिटल की जरूरत है। इतने लोग अंधे होते हैं यहाँ पर। और वो जो अंधापन है ना, इट्स अ बेकार का अंधापन, क्योंकि वो ठीक हो सकता है ना। व्हाट वी कॉल इन इंग्लिश, नीडलेस ब्लाइंडनेस। जरूरत नहीं है। वो कैटरैक्ट थोड़ी बड़ी बात है, कैटरैक्ट निकालेंगे तो दिख सकते हैं आपको, लेकिन कैटरैक्ट निकालने की व्यवस्था ही नहीं है तो क्या कर सकते। इसलिए उसको गवर्नमेंट भी बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं, नीडलेस ब्लाइंडनेस। बिना जरूरत का अंधपन है वो, उसको हम टाल सकते हैं। बॉम्बे में कोई अंधा नहीं होता है कैटरैक्ट की वजह से। वो तो कैटरैक्ट आते ही तुरंत निकाल लेते हैं, वो तो मैच्योर होने की जरूरत भी नहीं है, पूरा दिखना बंद होने की भी जरूरत नहीं है, बीच में ही आते ही तुरंत निकाल लेते हैं उसको, बॉम्बे के सिस्टम में। लेकिन गाँव में लोगों को नॉलेज भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, उधर कोई आता भी नहीं है, गवर्नमेंट भी कुछ करता नहीं है। तो फिर यहाँ से कुछ डॉक्टर्स, जो टॉप डॉक्टर्स थे, टॉप डॉक्टर्स, वो सब यहाँ से निकल के, यहाँ का इनकम सब छोड़ के उधर गए गांव में।
और उन्होंने सेवा करना शुरू किया। इतना बड़ा त्याग किया उन्होंने, यहाँ से हाफ सैलरी में वहाँ पर काम शुरू किया। कोई नहीं छोड़ता ऐसा। सेटल प्रैक्टिस है उसका, इनकम भी सेट है, नाम भी है, पेशेंट भी है, सब कुछ है। कौन जाएगा छोड़ के? इतना सेटल डॉक्टर है, इतना पढ़ाई किया है। लेकिन उनको लगा कि कई बार कैंप में गए तो उनको लगा कि ये इतनी ज़रूरत है यहाँ पर, हम लोग इतने पढ़े लिखे तो हमारे पास शक्ति है करने की। तो यहाँ से गए, आधा पगार में वहाँ पर काम शुरू किया। उसको अभी 2011 में गए थे वो, उसको 15 साल पूरे हो गए जाके। तो फिर धीरे धीरे फिर हमें जगह खरीदा, और जगह खरीदने के बाद पैसे नहीं थे बांधने के लिए, तो किराए के जगह पर ही हमारा चलता रहा सब। तो जब वहाँ से चले गए तो एक जगह किराए पे लिया और हॉस्पिटल शुरू कर दिया। तो महीने वाला कैंप बंद कर दिया, क्योंकि अभी वो फुल टाइम वहाँ पर ही है ना बैठे हुए, तो हर महीने में करने की जरूरत क्या, रोज ही कर रहे हैं। तो मंथली कैंप बंद हो गया, लेकिन वार्षिक कैंप चालू रहा, ईयरली कैंप। फिर 10 साल देयर वाज नो मनी, सो इन द रेंटल प्लेस द कैंप इज गोइंग ऑन and the land is empty because we require many crores of rupees to build the hospital. So after 10 years, in 2012 we got the land, in 2022 we started construction, and in 2.5 years we started in May 22 and January 15th 2025 last year, 3rd May 2022 we started construction, and 15th January 2025, मतलब exactly 2.5 years we opened the hospital. Now our dental camp, eye OPD, eye surgery, eye ward, prasad, lunch, dinner, everything is in one place. Before 20 years, dinner, lunch, different place. Eye OPD, different place. Eye admission, different place. Eye operation theater, different place. Dental camp, different place. So very difficult, very, very difficult situation. So staying different also. In 10 different places you are staying. So that will not change because we don't have staying arrangement in the hospital. But dental camp, eye OPD, eye surgery, eye inpatients, आपका volunteer लोग का खाना पीना, everything is in one place. You come in the morning for your duty, your breakfast, lunch, dinner and all seva is there only. Only in the evening you go to sleep in your room. And room is little far. You have to go by auto or we send by bus. So why we have gone so far? Any reason behind it? Are there not poor people close by here? Are there not Adivasi villages close by here? So for your knowledge, I think you must be knowing also, from Bhaktivedanta Hospital, every day, 6 days a week, a van goes, a bus goes with our staff team and does camp in 100 villages in Thane district. We do 10,000 operations per year, free of charge. We go, we put up the OPD, we examine people. Those who don't need operations, we treat them there only. And those who need operation, we pick them up in the bus and bring them over here. Something like 50 people per day, 40 people, 50 people. When we admit them here, we keep them 2 nights here, we do the eye operation, and the 3rd morning we, along with them, when the bus goes, we send them back to the village, drop them and go to the different village. So like that, we have got Best NGO Award for these free services in Thane district. That's why Thane government, whatever municipality, they have given us permission to do camps in any village of Thane. Otherwise, one organization will get permission only in 2-3 areas. Thane is a very big district in Maharashtra. But because of our good service, the government has given free entry to any village. You can choose anywhere and you can do. So we have to understand that there is no motivation of money here. It's totally free of charge. We don't charge any money. We give everything free of charge. Before that, we were going to the village and we were thinking that people will come. But some people are so old that they can't get out of their bed only. So when I was taking the camp in Barsana, at that time, I used to do also yatra. Like for you also, I'll be taking yatra, right?
So when I used to go to Yatra, I'll go to temple, na? I go to temples, I'll go to holy place, pond, river. There I will find many sadhus, old 90-year-old sadhu, in the bed only, old man, एकदम दाढ़ी बड़ी हुई, and he says, मुझे भी कैटरैक्ट है लेकिन मैं वहाँ पर पहुँच नहीं सकता, मेरे को कौन लेके जाएगा, मेरा परिवार तो है नहीं. So we thought that so many sadhus are there who are old and having cataract, and they can't come to your hospital. Your hospital is very good, but they can't come. So we started doing outreach. That means we are now from here, how we go out. Like that we are going out also now. So one team is working there only. People are coming and getting examined. Another team goes out and brings those people who cannot come. Get them in the hospital, operate them and drop them back to their place also. That is called outreach seva. And no money. For taking and bringing back also transport, no money. Everything is free of charge. Khana, pina, dawa, plus one blanket we give gift to them. 40 days medicines we give them. 2 follow-ups we give them. ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन किया हो गया अपना काम. Like here your mother gets operated, you will bring her to doctor after 4 days, after 7 days, after 15 days. करते हैं कि नहीं आप लोग? क्या अभी दुख रहा है, क्या पानी आ रहा है, क्या लाल खत्म हो गया ना, अभी ठीक है ना, दुखता है नहीं ना. So many follow-ups are there, but we do 2 follow-ups there. 1 follow-up after 1 week of surgery. So in the 20 days camp, 1 week तो किसका हो जाएगा ना, वो भी चलते रहता है. समझे आपको? समझो 2nd of February को somebody got operated, so 9th को उसका 1 week हो गया ना. So वो भी एक लंबा 50-100 लोगों का लिस्ट रहेगा, वो भी आएंगे ओपीडी में. नए पेशेंट भी आ रहे हैं, ऑपरेटर भी आ रहे हैं, उनका सब उसका पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं और उनको भी दिखाते हैं, उनका ओके करके भेजते हैं. तो हर दिन कैंप में एक 7 दिन के बाद में, जस्ट इमेजिन 2 तारीख को किया, 3 तारीख को किया, तो पहला ऑपरेटेड पेशेंट 7 दिन के बाद कब आएगा? 9 तारीख को आएगा. तो 9 तारीख के बाद में 20 तारीख तक रोज 100 पेशेंट ऑपरेटेड आएंगे. एवरीडे 100 पीपल ऑपरेटेड, बाकी ओपीडी डिफरेंट. वो 300-400 ओपीडी चलती रहेगी और 100 लोग एपी आएंगे. उनके पास कार्ड रहता है ऑपरेटेड, वैसा काला चश्मा लेके आएंगे. उनका भी देखभाल करते हैं, उनको भी फॉलोअप देते हैं और सभी लोगों को 40 डेज के बाद में भी देखते हैं. जब पूरा जख्म वखम सब भर जाता है, पूरा कुछ दुखता नहीं, कुछ नहीं, तो फाइनल चेकअप करते हैं. किसी को चश्मा चाहिए तो चश्मा देते हैं. जनरली टुडे व्हाट वी पुट लेंस ना, यू मस्ट बी नोइंग, ए स्कैन बी स्कैन वी डू ना. तो ए स्कैन बी स्कैन वी perfect number we take out. Everybody has got perfect number. For you separate number is there. So when you put that lens inside, no chashma is required. But sometimes some people require small number, so that also we give. But 40 days till the wound gets healed, we give them medicines. In the first week, 6 times a day, drops. The next week, 4 times a day. Next week, 3 times a day. Next week, 2 times a day. Next week, 1 time a day. And follow up. अब ये मत डालो, ये डालो, ये बंद करो. There are many things are there. Lots of instructions are there. There are also 45-minute ceremony is there. You will see there. One Maharani sister is there. Every day she will conduct that ceremony of 45, 1 minute, 1 hour, explaining the Brajvasi in their language. It's a very interesting scene. You must go and see the discharge ceremony. How she speaks Brajvasi language, how sweetly she explains everybody. That is also very interesting. So, along with the camps over here, why we went to Barsana? Because Barsana is a holy place. It is Radha Rani's hometown. महारानी को गांव, राधा रानी को गांव, जय जय श्री राधे, जय बरसानो धाम, जय जय श्री राधे. महारानी को गांव, राधा रानी को गांव, जय जय श्री राधे, इसे हम गाते हैं उधर. तो राधा रानी का जो हमारा उन पर प्रेम है, कृष्ण पर प्रेम है, इसलिए हम लोग वहाँ पहुँचे. और वहाँ के लोग जो हैं वो पवित्र लोग हैं, धाम में रहने वाले लोग हैं, उनकी हम सेवा करते हैं. इधर भी फ्री करते हैं, उधर भी फ्री करते हैं. लेकिन वहाँ पर आपको लेके जाने का पर्पस क्या है कि आप लोगों को एक तो गरीबों की सेवा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो गरीब भी हैं, उनके पास सुविधा नहीं है. ऊपर से वो महान लोग हैं, भगवान के महान भक्त हैं, तो उनकी सेवा करने से आपको आशीर्वाद भी मिलेगा. 2 हो गया ना काम. तीसरा काम, आप धाम में निवास करेंगे ना. तो बॉम्बे में रहते हैं आप लोग, लेकिन वहाँ भगवान के धाम में रहेंगे तो उसका भी एक एक्सपीरियंस है. जहाँ भगवान रह चुके हैं वहाँ पर आप रह रहे हो, उसको कहते हैं
धाम वास, स्टेइंग इन द होली प्लेस। ऐसे बहुत सारे पर्पज है, उसमें भी ऐसा वातावरण रखा हम लोग को, हमने रखा है कि आप लोगों को आश्चर्य होगा कि जितने भी भारत भर में बहुत कैंप होते हैं, ऐसा कि नहीं हर एक आई सर्जन कैंप में जाता है, ऐसा कोई आई सर्जन नहीं वो कैंप में जाता नहीं, वो तो कैंप में करते रहते हैं ऑपरेशंस। लेकिन कोई भी व्यक्ति उनको कैंप होने के बाद देखने को जाता नहीं है, बस ऑपरेशन हो गया जाओ, बाकी लोकल डॉक्टर को दिखाओ, कुछ पानी आ रहा है लाल हो रहा है तो आप लोकल मैनेज करो, हमारा काम हो गया। कैंप में खाना भी नहीं खिलाते, बस आओ जाओ अपना रोटी लेके आओ, अपना खिचड़ी लेके आओ, हम लोग खाली ऑपरेशन करेंगे भेज देंगे आप। फिर हमारे कैंप में उनको जब लाइन में लगता है, लाइन में बहुत भीड़ होती है, बहुत टाइम लगता है, उधर भी खिचड़ी खिलाते हैं, क्योंकि सुबह से आदमी दूर के गांव से आया है, भूखा है, 4-5 घंटे हो गए, ठंड का मौसम है, कुछ खाने पीने का नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा। तो कंटिन्यूस खिचड़ी हम लोग बांटते रहते हैं ताकि रिलेटिव्स, पेशेंट जो टेस्ट में है, बीच में भूख लगती है, उनको बाथरूम की व्यवस्था करते जाने के लिए, और एडमिट कर लेते हैं, फिर उनको 5 बार खाना खिलाते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट लंच, ऐसे 5 बार खाना खिलाते हैं उनको। प्री ऑपरेटिव करते हैं, फिर ऑपरेशन करते हैं, लेंस डालते हैं, 40 दिन की दवा देते हैं, एक जोड़ी स्लीपर और एक कंबल गिफ्ट में देते हैं, कभी कभी स्लीपर नहीं रहता है, कभी कंबल तो रहता ही है, और बड़े हाँ सॉक्स देते हैं कभी। तो कभी कभी मतलब ये सेवा भाव जो है ना, इसके वजह से लोग क्या करते हैं, वहाँ के बाहर के कैंप में जाकर आंख दिखाते हैं और डायग्नोस कर लेते हैं कि मुझे कैटरेक्ट है, ऑपरेशन की जरूरत है, तो वो लोग डेट देते हैं उनको कि आप आ जाओ, तो वहाँ जाते नहीं, वो इधर आके वेट करते कि इधर ऑपरेशन करवाएंगे। मतलब डायग्नोसिस जो है जब तक करना है कहीं तो दूर करवा लेते हैं, लेकिन हमारे कैंप के लिए वेट करते हैं, क्योंकि अभी 28 साल हो चुके ना, नहीं कितने साल हो गए, 34 ईयर्स हो चुके, 28 तो हॉस्पिटल को हो गए, 34 ईयर्स से सेवा कर रहे हैं, तो लोगों को पता है कि हरे कृष्णा वाले डॉक्टर आएंगे मुंबई से, बढ़िया काम करेंगे, गुड रिजल्ट इज देयर, गुड सेवा भाव इज देयर, और इसलिए आपको मैं मिल रहा हूँ। क्योंकि अगर किसी कैंप में लेके जाना तो क्या आपको ओरिएंट करना है, आपका जाकर अपना काम करो, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि आप किस जगह पे जा रहे हो, कौन लोगों की सेवा कर रहे हो, कैसे हम करने वाले हैं। बॉम्बे जैसे शहर में ना, आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, सब लोग मुझे बताओ, हाँ, आपको साल भर में कितनी बार आशीर्वाद मिलता है किसी का, बताओ, दिल से कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है, बर्थडे, बर्थडे, वो दिन भी कितने लोग आशीर्वाद देते हैं आपको, पेरेंट देते हैं, 2 हो गए वो, तो बड़ी बहन होगी तो वो भी हो सकता है, दादी होगी तो भाग्य है आपका, और 2-4 मिलेंगे एक्स्ट्रा, दादा दादी नानी मौसी मिलेंगे तो और भाग्य है, लेकिन वो भी आजकल बर्थडे को नहीं आ पाते हैं। तो साल भर में एक बार आपको एक आध 2 लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और बाकी साल भर में क्या सुनने को मिलता है, ये ताना दे रही है, वो कुछ बोल रही है, वो बोल रही है वो लुच्ची लड़की है, ये ऐसी है वैसी है, यही सुनने को मिलता है ना, क्रिटिसिज्म, ताने मारना, क्रिटिसिज्म, टॉन्टिंग, यही सुनने को मिलता है। तारीफ या आशीर्वाद मिलता है क्या, नहीं मिलता है। तो हम लोगों को ना आशीर्वाद की आदत नहीं रहती। बरसाने में जब भी पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं ना, तो वो इतना आशीर्वाद देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं कि वो आशीर्वाद प्राप्त करके ये लड़कियां वॉलंटियर रोते हैं उधर, आनंद से, मतलब ऐसा भाव विभोर हो जाते हैं, इतना आशीर्वाद। 100 लोग डिस्चार्ज होते हैं ना हर दिन, तो 100 लोगों का एक साथ में सब लोग को आखिर सब प्रेम से ऐसा इतना दुलारेंगे आपको, दे विल करेस यू सो मच, द पीपल हु आर receiving that blessing na, they cry like anything, and they cannot forget that over in life, because so much blessing, so much blessing every day, for 7 days you are there and receiving blessings and blessings and blessing. उसके लिए भी मन की तैयारी होनी चाहिए इतना ब्लेसिंग पचाने के लिए। Why I am telling you all these things, because you will be mostly working in wards. The biggest number of blessings are available in wards, because those are the ones who are operated and you have got their eyesight back. समझ में आया? कई दिनों तक तो अंधे थे, लेकिन अभी ऑपरेशन सुबह हो गया, उनका एक ही एंग्जाइटी रहता है, हमारा होगा ना, हमारा होगा ना। उधर एक भाषा है बोलने की, क्या बोलते हैं वो, मेरी आंख बनेगी ना, मेरी आंख बनवा लो,
वैसे वहाँ के एक स्टाइल है बोलने की। मतलब मेरा कैटरेक्ट ऑपरेशन होगा ना, मेरी आँख बनेगी ना, आप बनमल होगे ना, कैंसिल तो नहीं होगा ना, तो टिल द टाइम दे आर एडमिटेड उनका एक एंग्जाइटी होता है। और ऑपरेशन के एडमिट होने के बाद भी वो बार बार पूछते रहते हैं बनेगी ना आँख, बच्चों समस्या तो है ना है। फिर एक बार ऑपरेशन में गए और करके बाहर आ गए, एकदम शांति हो गया, मेरा आँख बन गई, मेरी आँख बन गई। तो आँख बनने के बाद में वो इतने खुश रहते हैं, इतने खुश रहते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, दुखता है उनको थोड़ा सा, लेकिन वो आँख बन गई ये सुनकर, बिना पैसे की, खाना पीना के साथ, प्रेम के साथ, हरे कृष्ण महामंत्र के साथ, कीर्तन के साथ, प्रसादम मिल रहा है, तो इतना 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 आशीर्वाद देते हैं वार्ड में। और मैक्सिमम आशीर्वाद देते हैं डिस्चार्ज के टाइम। 40 दिन की दवा, काला चश्मा, एक कंबल, क्या नहीं देते उनको, दुनिया में कोई देता नहीं। लेकिन आप लोगों को देखना ही है कि वार्ड में पेशेंट की बहुत प्रकार की सेवा होती है, मेनी मेनी टाइप्स ऑफ सेवा। ऑपरेशन के आने के बाद में इतना बड़ा पट्टी रहता है पूरा ऐसा बड़ा, तो उसमें दुखते रहता है उनको, रात को नींद नहीं आती, कभी 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 किसी किसी को उल्टी होती है, कोई हाइपोटेंशन होता है, किसी को डिहाइड्रेशन होता है, किसी बहुत सारी समस्या होती है। खुशी है उनको, लेकिन समस्या भी चल रही है साथ में। तो वार्ड में ना कभी थकना नहीं है। नाइट ड्यूटी होगी, डे ड्यूटी होगी, तो ऐसा नहीं कि नाइट है तो नींद हो रहा है बैठ जाएंगे, रात को ही सब तकलीफ होती है ऑपरेशन के बाद में लोगों को। तो रात भर वो कुछ ना कुछ सेवा उनकी चलती रहती है, तो आपको प्रेम से सेवा करना है, आलस नहीं करना है। दिन में ही फ्रेश रहेंगे, रात को सोते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अधिकतर तकलीफ लोगों को रात को होती है, नींद नहीं आती है, दुखता है, फिर उनको बीपी बढ़ा हुआ रहता है। एक और समस्या होती है, ऑपरेशन के पहले लोगों का बीपी बढ़ जाता है, टेंशन आता है उनको, कैसे होगा कैसे होगा, करना तो है लेकिन कैसे होगा। वो कैसा है, होता है ना प्रेग्नेंट लेडी, बच्चा तो चाहिए लेकिन डिलीवरी 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 के डरते रहते सब, नहीं 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 वो सीजरियन कर लो, वो नहीं करना है मुझे, बच्चा चाहिए लेकिन वो एक टेंशन रहता है। उसी प्रकार से ऑपरेशन करवाना है, बट हाउ, कैसे होगा। तो उसे प्री ऑपरेटिव वार्ड में सब लोगों का बीपी आपको हाई मिलेगा, बहुत लोगों का। पीरियोडिक गिव देम टैबलेट एंड ब्रिंग द बीपी डाउन, बिकॉज if it is high you can't operate the patient. Tell me why you can't operate the patient with high BP? अरे यू आर ऑप्टोमेट्रिक स्टूडेंट्स ना, यू आर नर्सिंग स्टूडेंट्स, ब्लड लॉस होगा ना ज़्यादा, आप कट करोगे ना थोड़ा सा भी कट करना पड़ेगा ना। हाई बीपी देन ब्लीडिंग विल नॉट स्टॉप ओनली। एंड व्हाई कांट वी ऑपरेट पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज, हाई शुगर, हील नहीं होगा। सो प्री ऑपरेटिव वार्ड में वो देखते हैं, हाई शुगर, हाई बीपी नहीं तो है ना। और भी एक होता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, क्या बोलते हैं उसको, ग्लॉकोमा, IOP, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, उससे भी, उसमें ऑपरेशन करेंगे तो एक तो विजन मिलता नहीं है, ऊपर से ब्लीड भी बहुत होता है, तो वो भी देखते हैं, टोनोमेट्री से देखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइज्ड काम होते हैं वार्ड में, प्री ऑपरेटिव में और पोस्ट ऑपरेटिव में। प्री ऑपरेटिव में अलग काम होते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव में अलग काम होते हैं। आप लोगों को शायद डिवाइड किया जाएगा, कुछ लोग पोस्ट ऑप, कुछ लोग प्री ऑप, somebody will be night duty, somebody will day duty. What is the duty hours in Barsana? Any idea? 12 hours, 5 a.m. to 5 p.m., 5 p.m. to 5 a.m. Because the preparation starts at 5 in the morning. If the OT is going to start at 8 o'clock, the preparation starts at 5 in the morning. Go to toilet, bring them back from toilet, then wash them. If they have beard, then you have to shampoo. But they don't allow you to cut the beard. But they're sadhus, many of them. So all that preparation is to be done by you with great love and affection, not with क्या रे इतना बड़ा बाल बढ़ा के रखा है, दाढ़ी क्यों नहीं करते आप, not like that. They are sadhus, they are not people like Mumbai. Mumbai में after 1000 people, one sadhu will come to you. There after 1000 sadhu, one normal person will come to you. Because it's a holy place where people are all sadhus and devotees, great devotees. You don't know, some people are very highly advanced devotees, we don't even know them. So when you deal with them, be careful, don't hurt them. They are devotees of Radha and Krishna. If you hurt them, then you will get reaction of that. तो क्या बोलते हैं, वैष्णव अपराध,
मला झोप येते तो उभी राहते बाजूला. When you hurt a devotee, then what you get is Vaishnava Aparadh. And when you get Vaishnava Aparadh, lot of bad reaction is there. It's like that. So please don't hurt anybody. Serve them with love. And in turn, they will bless you so much now. You will feel for that blessing, all service is okay. Because nobody blesses you in Mumbai. Whatever good you do, nobody gives blessing to you. Sometimes patient give and discharge time, or when they get a child or something, they are blessing you, but not like Barsana. Barsana blessing experience is unbelievable. Unbelievable. You also will understand what I am saying is true. So, specially I have called you here. I am doing orientation for many groups. This group I have called here because you are going to be serving in the ward. And we have noted that sometimes when people make mistakes in the ward, people get offended there. But there are many kinds of services. You have to give food also, you have to give tablet also, you have to give injection also, you have to give, so many things are there. So you can't make mistake in any of these things. But 10 किया तो क्या हुआ, एक mistake हुआ, ऐसा नहीं चलता है. All 11 things have to be done properly only. Then only operation can be done properly. That is why I am telling you that people who are working in the ward are very fortunate. OPD, how OPD is? OPD they come, suppose they are not to be operated. They don't have mature cataract, they don't have cataract only, they need chashma only. So they will meet you 2 hours and they will go back home. They will not stay with you. Who will stay with you? Those who are getting operated. They are registered and they are called on that day. Every day they will come at particular time. This will go, 9 o'clock they will go, empty the ward, the bedsheet will be changed and the new batch will come. The same thing we'll do every single day. So it is important to not to get tired and do it with great love, affection, devotion, compassion, kindness. Because for you it is first and best opportunity. Then you come afterwards, when you become nurse, that is different story. But today you are going for the first time. So we have to caution you that you are doing a great seva. These cataract patients are not like Thane cataract patients. Thane cataract patient may be drunkard also, bidewala also. There can be non-veg eating also. There can be any wrong thing they must be doing. But those people who are coming to you are all saintly people. All great devotees of the Lord. So great devotees that in the night when they are sleeping under Razai, deep sleep, they are chanting Radhe, Radhe, Radhe. I have not seen people like that. Who are fast asleep, but by mouth, मुख से राधे राधे बोल रहे हैं. ये मैंने आंखों से देखा है मेरे. हम लोग पूरी रात की नींद निकाल के सुबह फ्रेश उठते हैं और जप करने बैठते, फिर भी जप करते सो जाते हैं. और वो सो रहे हैं तो जप कर रहे हैं. हम लोग जग रहे हैं तो भी सो रहे हैं जप करते समय. ये उनकी महानता है. इसलिए आपको बताना जरूर है धामवासी का मतलब क्या होता है. जिसने धाम में जन्म लिया है वो महान जीव होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो. लेकिन अगर धाम में उसका जन्म हुआ है तो हर धर्म से धाम में जन्म लिया हुआ व्यक्ति महान होता है. क्योंकि वहां पर बहुत मुसलमान पेशेंट आएंगे, बहुत क्रिश्चियन आएंगे, बहुत सारे अलग जाति के लोग आएंगे. तो केवल हिंदू लोग डिवोटी नहीं है. जो भी वहां पर जन्म लिए हैं सब लोग महान भक्त है भगवान के. उनका जन्म ही बहुत महान है. वो जन्म के बाद उनको वापस जन्म लेना नहीं पड़ता है. वो जन्म एंड हो गया तो भगवान के पास चले जाते हैं, क्योंकि धाम की महिमा है वो. तो आप लोगों को धाम में रहने का भाग्य मिल रहा है, धाम वासियों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, और जो जरूरतमंद है उनकी भी सेवा करने का मौका मिल रहा है. 3 तरफ से आपको लाभ हो रहा है. और ये जब भी आप लोगों का होता है ना नर्सिंग का वो सेंड ऑफ, उसमें कुछ विद्यार्थी आके यहाँ पर बोलते हैं अपना एक्सपीरियंस. विदाउट फेल दे विल से बरसाना बरसाना बरसाना. इतना यहाँ पर बरसाने की हवा है कि जो लोग गए हैं वो इतना उनका अनुभव छा जाता है कि बाकी वाली बैच हमारा नंबर आएगा, हमारा नंबर आएगा, हमारा कब आएगा. और उनका एक बार नंबर आ गया तो वो बोलते हैं नेक्स्ट ईयर क्यों नहीं, नेक्स्ट ईयर क्यों नहीं, नेक्स्ट ईयर क्यों नहीं. इतना ये बरसाने का जो कल्पना है हमने जो सेट किया है वो लोगों को प्रभावित करता है. इतनी लोगों को आध्यात्मिक खुशी मिलती है उससे, वो बार बार जाना चाहते हैं वहाँ. तो आप लोगों को अनुभव मिलना चाहिए, इसलिए बैठकर मैं समय दे रहा हूँ. तो एक हो गया 12 आवर ड्यूटी. हाँ, सब लोगों को टाइम पे ड्यूटी पे आना है, क्योंकि आपके
पहले वाला जो ड्यूटी करने वाला है वो भी 12 घंटा ड्यूटी कर चुका है। समझो आप शाम को 5 बजे पहुंचे, 5 o'clock यू रीच देयर, व्हाट टाइम यू गेट फ्री? हाँ, 5 PM you join duty, what time you get free? 5 AM ना, तो suppose I come, my duty is 5 AM and I come at 5:30, so half an hour extra हो गया ना आपका, और हैंड ओवर कब देंगे उसको आप? So don't come late in the evening 5 o'clock, sharp 5 o'clock, don't come late in the morning also, sharp 5 AM you come, so that previous day 12 hours they will go and you will take over. And it's not only for relieving your friend who has done 12 hours, but even patient seva is going to be pending, because if you go late, everything will start late. They have to be taken to toilet, they have to give medicine, they have to be get ready, उनको माउथ वॉश देना है, उनको बियर्ड वॉश देना है, उनको क्लीन करके पट्टी लगा के भेजना है. So everything gets late. Then what gets late? OT gets late. So everything starts at 5 o'clock, so OT starts in time. Doctors are already there in OT, they are waiting. OT team is also waiting. So punctuality is very important. Don't waste your time. Where you waste time? Talking after duty hours. या 5 o'clock in the evening you're gone, you're taken, कथा सुन लिया आपने, डिनर खा लिया, फिर जाके गप्पे लड़ रहे हैं सब, दिन भर की बातें, लेट नाइट तक 11 बजे तक सो रहे हैं, और ड्यूटी पे कब जाना है वापस? 5 AM. तो सोए नहीं गए तो उठेंगे कैसे? फिर क्या करेंगे? ड्यूटी में सोएंगे, थक गए, बहुत नींद आ रही है, क्यों? रात को 11 बजे तक बातें कर रहे थे, क्योंकि फ्रेंड्स है सब लोग ना. यहाँ पर तो लोग आके चले जाते हैं, वहाँ पर साथ में रह रहे हैं, कितना बड़ा एक्सपीरियंस है, पिकनिक एक्सपीरियंस. सो स्टेइंग टुगेदर इन द नाइट, गोइंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, so many days. It's a big thrilling activity. So all friends are coming together to stay. So we talk. But I suggest you can talk, but don't sleep late in the night. Because if you don't sleep late in the night, already it is very cold. You may fall sick. If you fall sick, what seva you will do? Tell me. You're gone to do seva there. And if you fall sick, then somebody else will do your seva. And you are in the bed next to the patient. आपको भी IV लगा के रखा है. इसलिए you have to take care of yourself. Eat properly in time. Don't eat too less. Don't eat too much. Sometimes food is so tasty, so people go on eating and then they fall sick after that. Because सबको जमता नहीं है वहाँ का पानी, हवा, सब, things are new ना. The Bombay people. So eat in time. Eat proper amount, not less, not more. Sleep in time. Get good rest and come and fresh and serve. So that your purpose of going there will be fulfilled. कि सेवा करने गए थे, सेवा करके आ गए. नहीं तो लोग बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा खाते हैं. समझो अभी मेदू वड़ा बनाया है तो कुछ 8 मेदू वड़ा खाते हैं कुछ लोग, फिर बीमार पड़ते हैं. बिकॉज किसी को आदत है कि 8 वड़ा खाने की. आप लोग कभी ऑर्डर करते हो 8 वड़ा खाते हो, एक वड़ा ऑर्डर करते हो 2 प्लेट दो खाते हो एक बार, लेकिन वहाँ पर मिल रहा है इसलिए खाते हैं तो फिर बीमार पड़ जाते हैं. फिर कुछ लोगों को भूख ही लगती नहीं, उसमें लंच में आते ही नहीं, तो लंच बना के रखा, लेकिन कुछ लोग इतना मेदू वड़ा खाया तो आते ही नहीं टाइम पे खाने के लिए. फिर लंच टाइम निकल जाए तो बाद में भूख लगती है उनको, बीच में कभी कभी. इसलिए आई एम टेलिंग, पर्याप्त मात्रा में भोजन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर कमी नहीं कुछ चीज़ की. बट यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बी ऑन ड्यूटी ऑन टाइम, eat on time, sleep on time, get fresh and go. And don't do anything else apart from duty. You have come for duty, do duty. बीच में क्लासेस हो गए ना कुछ आपके, कुछ होता है ट्यूटोरियल्स नहीं ना, ओनली सर्विस. कीप अंडर मैडम्स, डोंट रन अराउंड हियर एंड देयर, बिकॉज यू आर फॉरेनर्स देयर. You are from Mumbai, not from local village. So when you are from outside of Vrindavan Dham, people there feel कि you have got something very costly with you. Maybe you have mobile with you, maybe you have this with you, maybe you have money with you. So if you are not under supervision and protection, then you may lose your mobile, you lose your pickpocket हो सकता है आपका, या कोई छेड़छाड़ करेगा आपके साथ में कि मुंबई की सुंदर लड़कियां, जवान लड़कियां आई हैं और हाँ 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 करके रोड पे चल रही है, तो लोगों का ध्यान आएगा आपके ऊपर, है ना. All young girls are there in big group and everybody is joking, laughing, talking, attracting others' attention. Then somebody may behave bad with you and it will be a bad experience for you. And you will say, I will never go to Barsana back. I got this bad experience. My mobile is stolen. I will never go back again Barsana.
Whose fault it is? Our only fault. We have not behaved properly. We have gone out of protection. So protect yourself. Safety is very important. As much as discipline important, safety also is important. Take care of yourself. हाँ, डोंट ऐसे वो बाल छोड़ के वगैरह बाहर घूमना नहीं, बिकॉज एवरीबडी विल स्टार्ट लुकिंग एट यू। मुंबई की लड़कियां आई हैं, सब लोग देखते रहेंगे आपको, गांव के लोग, क्योंकि हमारा कैंप है ना, एक बड़ा फेस्टिवल है वहाँ पर। जब कैंप होता है ना, तो हमारे 500 लोग वहाँ पर रहते हैं सेवा में आए हुए। आप ही अकेले लोग नहीं हो, वहाँ पर बहुत लोग हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं, भारत भर से आते हैं, विश्व में परदेशी लोग भी आते हैं, सब लोग मिलकर सेवा करते हैं। तो आई कैंप जब लगता है ना, तो रिक्शा स्टैंड बनता है हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि लोगों को आना जाना चलते हैं, तो पूरा भीड़ रहता है उधर, इतने लोग अंदर सेवा कर रहे हैं, ऊपर से 400-500 पेशेंट भी है, 400-500 रिलेटिव भी बैठे हुए हैं, खिचड़ी खा रहे हैं। तो इट्स अ बिग फेस्टिवल एंड सो मेनी पीपल आर स्टेइंग, ईटिंग टुगेदर, गोइंग बैक टुगेदर, कमिंग बैक, मॉर्निंग नाइट, डे एंड नाइट आवागमन चलते रहता है उधर, पेशेंट का आपका। तो उसमें बहुत सारे पॉकेट मार वगैरह आते हैं उधर, मुंबई के लोगों को पकड़ने के लिए। इसलिए आपको बता रहा हूँ, डोंट टेक एनी रिस्क, डोंट कैरी एनी वैल्यूएबल्स। अगर गोल्ड पहना हुआ है घर पे छोड़ के आओ, क्योंकि वो खींचेंगे तो कान भी काट के लेके जाएंगे आपका, खींचेंगे तो थोड़ी वो आपका वो स्क्रू निकाल के ले जाएंगे, ऐसा खींचेंगे तो कान का कट करके ले जाएंगे, फिर आप रोते रहेंगे 2 चीज के लिए, दुख रहा है और वो गया भी। अभी आप हंस रहे हो, वहां 4 दिन रहोगे आप, क्या करूं करके। नहीं, अलाउड नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको होगा नहीं होगा अच्छी बात है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि कैंप में हमको हर प्रकार के अनुभव आते हैं। हम लोग अभी 34 साल से वहां पर कर रहे हैं, मैं जवान का बुढ़ा हो गया अभी कैंप करते करते, कितने अनुभव देखे हमने। एक जमाना था, पुराना जमाने में लड़कियों को उठा के ले गए थे डाकू लोग, यूपी में ऐसा डाकैत का राज्य था उस समय। लड़की पानी भरने कुआं पे गई, वहां से गायब हो गई, आज तक दिखाई नहीं पड़ी। ऐसे टाइम था वो टाइम। उस टाइम हम लोग बहुत ज्यादा लोगों को समझाते थे, यहाँ से वहां मत जाओ, साथ में रहो, टीचर के साथ में रहो, कहीं भी दिन के बाद में जाओ मत, रात के समय पर बस से जाओ, हमारे अकेले घूमते घूमते टहलते मत जाओ, और चल के जाएंगे, मजा देखते जाएंगे। डोंट डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वो गांव है, हमको आदत नहीं, हमारे मुंबई में तो 24 घंटा लाइट रहती है, पब्लिक रहता है उधर इतना, लड़की भी 3 बजे ट्रेन से उतरती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा रोड में भी लास्ट ट्रेन 1:30 को आती है, 1:30 बजे, तो 300 लोग में आधे लड़कियां होती है, लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पर क्या है, 7-8 बज के तो पूरा गुड़ुप अंधेरा, कोई नहीं है उधर, और आप जा रहे हो घूमते घूमते ऐसे, तो वेरी डेंजरस। लड़कों के लिए भी डेंजरस है, आपको भी लूट सकते हैं पकड़ के। कुछ सोच, आपके पास कुछ होगा, सोच सोच के होगा, शायद अब नहीं होगा आपके पास, लेकिन आपको पकड़ेंगे, 2-4 लाफा लगाएंगे, डंडा मारेंगे, फिर कुछ नहीं मिला तो छोड़ देंगे लात मार के। लेकिन क्यों हमको वो बैड एक्सपीरियंस लेना है? अपने आप को सेफ रखो आप। ओके। एक और बात है वहां पर अनसेफ, वो है बंदर। बंदर को देख के सबको हंसी आती है, फिर सब बंदर को देख के मजा करने लगते हैं, लेकिन बंदर को देखने लगेंगे, बंदर अलर्ट हो जाता है। और बंदर को देखेंगे नहीं, चलते रहेंगे, तो वो कुछ नहीं करेगा ना, आपको देखते रहेंगे, उसको हाँ हाँ वो करेंगे, वो आप पर अटैक करेगा, क्योंकि उसको, उसके लिए अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, है ना। उसको लगता है ये सब लोग मुझे देख रहे हैं, मतलब मेरे पे हमला करेंगे, तो मैं ही हमला करता हूँ उनको पहले। ऐसे ही बंदर हमला करता है, और बंदर हमला करता है तो वो काटता है, मांस खाता है, वो निकाल के काट के, गुस्सा आता है उसको। फिर रेबीज का इंजेक्शन ले लो, टीटी ले लो, 50 ड्रेसिंग करो उसके ऊपर, डर अलग, रो रही लड़की, ये सब कैंप में होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं बंदर की आंखों में मत देखो। कितना भी आपको हंसी आ रही है, मजा आ रही है, देख रही है, मनोरंजन हो रहा है, बंदर के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि बहुत रिस्की मामला है। पहले बरसाने के बंदर जो है तो बहुत माइल्ड थे, अभी इतनी भीड़ हो गई है ना, तो बंदरों को जगह नहीं बची है, तो वो एकदम ऐसा गुस्से में रहते हैं हमेशा। आपको ऐसा हाथ में थैली लेके जाएंगे ना, तो आपको लगा जा रहे हैं थैली लेके, थैली पे जंप मारेंगे, थैली छीन के लेके जाएंगे आपसे, आप देखते रह जाओगे। उनको क्या लगता है कि उसमें कुछ होगा, केला होगा, कुछ सब्जी होगी, कुछ खाना होगा, कुछ मिठाई होगी। अब ऐसा ऐसा घुमाते घुमाते जा रहे हैं आराम से मुंबई जैसे, लेकिन वो बंदर आके आपको कंधे पर चढ़ के आपका बैग खींच के लेके जाएगा, फाड़ देगा उसको। लोगों के पर्स खोल के, उनको सब पता है,
वो खोलेगा, पूरा चेन भी खोलेगा, अंदर से सब निकालेगा, एक एक करके देखेगा कुछ है का काम का। फिर कुछ नहीं मिलेगा तो पर्स खोलेगा, नोट मिलेगा, नोट फाड़ फाड़ के फेंक देगा वो आपके आंखों के सामने, और आप देखते रह जाओगे, अरे मेरा पैसा भी गया, कपड़े भी फाड़ दिए, सब कुछ। कितना दुख होगा आपको। थोड़ा सा आपने मनोरंजन किया, कितना कीमत दिया उसका। इसलिए आपको मैं सावधान कर रहा हूँ कि आपको बहुत आनंद आएगा सेवा में, लेकिन ये सब चीज से आपको बचना है। जो मैडम बताएगी वो आपको करना है, इधर उधर भटकना नहीं है। आपको एक समय पे टाइम निकाल के दर्शन के लिए लेके जाएंगे, क्योंकि सबका मन, अरे पहाड़ पे जाना है, दर्शन करना है, अभी दर्शन नहीं हुआ अब तक, मैडम जाऊं क्या जाऊं क्या। आपको एक टाइम रहेगा, तभी वो मैडम लेके जाएगी, साथ में जाना है, साथ में लौट के आना है। क्योंकि उधर भी पंडा लोग रहते हैं, वो हरास करते रहते हैं, अरे बम्बई से आए कुछ दे दो, पैसा दो करके, आपको बहुत ऐसा बात करेंगे, आप डर जाओगे सब लोग। इसलिए सुरक्षा कवच के बाहर आपको जाना नहीं है, अपने आप की बुद्धिमानी से रक्षा करनी है। ऐसा कोई आतंकवादी काम नहीं करना है जिससे आपका नुकसान होगा। बी केयरफुल अबाउट इट। ओके। फिर हमारी शेड्यूल क्या होगा, आपका तो ड्यूटी है 12 आवर का, लेकिन वहाँ शेड्यूल क्या होगा, वहाँ पर मंगला आरती होगी एक टाइम पे, वहाँ पर जप भी होगा, वहाँ पर सुबह एक आधा घंटे का प्रवचन होगा रोज। यहाँ कैसे प्रार्थना होती है वैसे एक शॉर्ट कोर्स होता है वहाँ पर मॉर्निंग में, अच्छे अच्छे लोग आकर, क्योंकि सब लोग मिलके कहाँ कहाँ से आते हैं ना, तो हम लोग चुन चुन के उनको देते हैं टर्न, वो लेक्चर भी देते हैं वहाँ पर। सुबह एक शॉर्ट होता है आधा घंटे का, और शाम को मैं एक देता हूँ 1 घंटे का, लोकल स्टोरी बताता हूँ पूरी, सब महात्मा बताता हूँ, राधा कृष्ण लीला बताता हूँ। तो आप समझो आपका ड्यूटी खत्म हो गया 5 बजे, आपको क्या करना है, तुरंत रूम पे जाओ, फ्रेश हो जाओ, और 6:30 को कथा में आ जाओ, कथा सुनो, कथा के बाद डिनर खा लो, और फिर चले जाओ सोने के लिए। ठीक है। लेकिन आपको दिन में एक कथा में तो आना है, सुबह में आना है तो शाम को आना है, लेकिन आप कथा सुनोगे ना तो आप कथा मिस नहीं करोगे। लेकिन पहली बार आपको आना है, फिर आपको पता चलेगा कि ये मैं मिस नहीं कर सकता। तो आप जाओ, फ्रेश होकर तुरंत आ जाओ, या तो वहीं फ्रेश हो जाओ, रेस्ट करो थोड़ा सा बैठ के आराम से, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए, लेकिन कथा मिस मत करना। और कथा के बाद तुरंत डिनर होगा, फिर हमारी बसेस अप डाउन करती रहेगी, आप बस में बैठना, अब आपके आश्रम में छोड़ देंगे आपको रात को। ठंड बहुत होगी, मुंबई के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठंड होगी, फिर भी आपका भाग्य यह है कि आप जब पहुंचोगे तो वो कम हो गई रहेगी। जब मैं पहुंचूंगा ना अभी, तो कितना टेम्परेचर होगा, 5 डिग्री टेम्परेचर है अभी मैडम। आज 11 है, कल से 5 है। तो जब मैं अभी गया था बीच में एनुअल डे करने के लिए, वहाँ पर एनुअल डे हो गया ना, एक साल पूरा हो गया ना 15 को, तो मैं गया था तो 17 को एनुअल डे सेलिब्रेट किया शनिवार को। 5 टेम्परेचर था वो दिन, 12 बजे तक धुंधी निकली नहीं, कुछ दिखता ही नहीं था। 12 o'clock इन द आफ्टरनून, नो सन, नो विजन, ओनली फॉग, थिक फॉग। वो सारे फॉग में पटाखे की बास आ रही थी, क्योंकि वो फॉग क्या है, पोल्यूशन है पूरा, तो उसमें आपको रिस्क लेना नहीं है। मैं तो बाहर निकलता ही नहीं, फॉग जाएगा बाद बाहर निकलता हूँ, क्योंकि वो हवा लेंगे तो मैं आई विल गेट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ना। मैं खाली गया टेस्ट करने के लिए, तो पटाखों की बात आई मुझे उसमें से, जो दिल्ली में आती है फॉग में, क्योंकि वहीं का फॉग इधर भी आता है, वही पोल्यूशन उधर भी आ रहा है अभी। तो आपको ध्यान रखना है, पूरा कवर करके आपको 5 बजे निकलना है, और अंदर घुसना है, बाद में फिर बच जाओगे आप। ठंड के इनफ कपड़े लेके जाना, बम्बई जैसा काम नहीं है। देखो यहाँ पर बिना सॉक्स के बैठा हूँ, वहाँ 2 2 सॉक्स पहनता हूँ मैं, कभी सुबह निकलते हैं ग्लोव भी लगेंगे आपको, इतना ठंड होती है। ऐसा ऐसा जाएंगे आप, जैकेट कैप अच्छी तरह लेके जाना, कोई रिस्क मत लेना, क्योंकि वो ठंड ऐसी होती है ना, तुरंत खांसी, यूआरटीआई, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है तुरंत, फिर आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, खांसते रहोगे तो कैसा काम करोगे। कोल्ड बहुत वो होता है, थकान होती है कोल्ड में, बहुत फीवर आएगा आपको। तो अभी से आपको ध्यान रखना है आपका, अभी से खाने पीने का कंट्रोल रखो, टाइम पे उठो, टाइम पे सो जाओ, और फ्रेश रहो हेल्थ में आपके, तभी आप वहाँ पर 7 दिन अच्छा काम कर सकोगे। तो अभी से आपका खाना पीना गड़बड़ हो गया और लेट नाइट सो रहे हो, तो निश्चित बीमार पड़ेगा, क्योंकि कमजोर आदमी वहाँ पहुंचेगा तुरंत बीमार पड़ेगा, ऐसा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर। भाई हम लोग बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत साल से हम लोग अपना बराबर ख्याल रखते हैं, टाइम पे खाते हैं, बराबर लिमिट में खाते हैं, ज़्यादा कम नहीं करते हैं, टाइम पे सोते हैं, रेस्ट लेते हैं, फिर हमारा सब काम ठीक होता है। लेक्चर भी अटेंड करते हैं, लेक्चर देते भी हैं, सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपना ख्याल ठीक से रखते हैं।
वो आपको देखना है, ठीक है। तो मैंने कहा कि सेवा होती है, दिन में 16 घंटे कीर्तन चलता है वहाँ पर। तो हम लोग सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अगर सेवा से फ्री हो गए और आपको टाइम है, आपको थके भी नहीं हो, फ्रेश हो आप, तो आप कीर्तन में जाके बैठो, वहाँ कीर्तन करो। लेकिन फ्री टाइम में और कुछ काम मत करो। शॉपिंग करने मत जाओ मार्केट में, क्योंकि आपको पता नहीं आप कौन से गले में घुस रहे हो और उधर क्या होने वाला है। शॉपिंग करना गलत नहीं है, लेकिन वो आपके लिए परिचय का एरिया नहीं है। सब देखेंगे बॉम्बे के लोग सब शॉपिंग लगे हुए हैं, तो उधर कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं, पैसे लेके आए होंगे, कुछ खरीदी करते होंगे। इसलिए किसी प्रकार का रिस्क मत लेना। मैडम को बोले बिना कहीं जाना ही नहीं आप, और गए तो जो भी हादसा होता है उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। आप मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। वो बरसाना कैंप में गए थे ना, उधर अपना पॉकेट मारा, लेकिन पॉकेट मारा किधर, जब अकेले थे तब मारा। जब ग्रुप में जा रहे थोड़ी पॉकेट मारेंगे, बस में बैठेंगे तो। इसलिए वहां पर जो भी हादसे होंगे उसके जिम्मेदार आप होंगे। आपको अपना ख्याल रखना है और जो बताया वैसा ही करना है, इधर उधर भटकना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं। हाँ, ड्यूटी पर है वो, ऑन ड्यूटी होना चाहिए वो, लेकिन ड्यूटी से गायब हो जाते हैं। क्या करने के लिए गायब होते हैं? मंदिर दर्शन करने के लिए गए, किसी को बताया नहीं, इसका नज़र चुकाया और चले गए और दर्शन करके आए। वो सब ढूंढ रहे किधर क्या मालूम नहीं। बाद में पता चला कि वो मंदिर दर्शन करने गया। हम लोग ऐसे लोगों को पनिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग इतना जिम्मेदारी लेकर आपको वहाँ ले जाते हैं, तो वहाँ काम चोरी करने के लिए लेके जा रहे हैं, सेवा करने के लिए लेके जा रहे हैं। आपको कोई डिसिप्लिन तोड़ना नहीं है। हमारे भी ऐसे कुछ भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, दिन में ड्यूटी करते हैं, सोचते हैं रात को गोवर्धन की परिक्रमा करके आएंगे। तो रात में अभी आपका ड्यूटी हो गया, आप लोग के कहाँ ड्यूटी हो गया उसका, क्योंकि रूम पे नहीं है वो। उसने प्लानिंग करके रिक्शा विक्शा बुक करके रात को जाता है गोवर्धन में, और रात की ठंडी में वो लोग परिक्रमा करके, बड़े डिवोटी है ना, परिक्रमा करके लौट के आते हैं और दिन भर सोते हैं। तो रात भर जो सोया नहीं तो दिन में कैसे जगेगा वो, तो ड्यूटी में सोता रहेगा, ड्यूटी में झपकी मारते रहेगा, काम नहीं करेगा। पेशेंट का काम है लेकिन वो बैठा है उधर डुलकी मार रहा है। ये सब नहीं करना है उधर जाके, नाटक नहीं करना है। देखो, सेवा करने जा रहे हो, सेवा करो, उसके बाद में यात्रा मिलेगी, वो यात्रा करो। अपने मन की यात्रा मत करो। आपको यात्रा का प्लानिंग है हमारा, हम आपको दिखाएंगे, तो दिन पूरा यात्रा ही करेंगे, आपको घुमाएंगे, कथा बताएंगे, खाना खिलाएंगे, बस में घुमाएंगे, सब करेंगे, लेकिन आपको अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना है उधर। हमने ऐसे लोगों को रस्टिकेट किया हुआ है, क्योंकि हमको वो सेवा के नाम पे क्या है ना, खाने की जगह व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, और क्या चाहिए। फ्री में यात्रा हो रही है, तो बीच में थोड़ा सा बुटली मार के जा सकते हैं ना घूमने के लिए। कोई बोल रहा है पीली पोखर अच्छी है वो जगह, कोई बोलता है प्रेम सरोवर अच्छी जगह है, पास में ही तो है, जाके आ सकते हैं। तो वो सब करते रहते हैं, क्योंकि सुनते हैं ना वहाँ जाके, अरे पीली पोखर पास में ही है, वो प्रेम सरोवर पास में ही है, वो उधर सांकरी कोर पास में ही है, वो श्री जी का मंदिर बहुत पास में है, जाके आते हैं ना, कब जाएंगे पता नहीं। वो सब नहीं करना है मुझे। नो, नो चालूबाजी, नो छल कपट, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेवा, उसी को आनंद का अनुभव होता है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन, सेफ्टी, हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ ऑल्सो और पेशेंट हेल्थ ऑल्सो। तो मेरे ऐसे कुछ आपको सावधान करने का प्लान था। आपको परम आनंद प्राप्त हो, परम कृपा प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, यही हमारी तमन्ना है, यही हमारी प्रार्थना है। और ऐसे आपको वहाँ जाके आना चाहिए कि आपको जिंदगी भर आपको धाम की याद आनी चाहिए कि हम लोग कभी बरसा नहीं गए थे, उधर कितना अनुभव आया था, दुनिया भर में किधर नहीं आया आज तक। कितनी जगह पिकनिक बनाने गए, कितनी जगह टूर पे गए, लेकिन ये जो गए थे, ये जो अनुभव था वो दुनिया में कभी भी नहीं आया। ऐसे लोगों को अनुभव होता है। आपके सारे पहले बैच लोगों को ये अनुभव हुए हैं, वो भी आपको होना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन में रहेगा तो होगा। एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। आप सब लोग जवान हो, यंग लड़कियाँ हो, आप कुछ लड़के भी हैं, वहाँ जाकर लड़के लड़की को मस्ती नहीं करना चाहिए। इस विषय में आपको बताता हूँ मैं, हम लोग 1% का भी माफ़ी देते नहीं किसी को, क्योंकि यहाँ पर आप आते जाते रहो, वहाँ पर रहते हो ना आप, तो वहाँ पर एक होता है टेम्पटेशन कि भाई उसको मिलूँ जाके, मैं उसको मिलूँ, उससे बात करूँ अकेले में। ये सब वहाँ दिखा ना, तो आपको कॉलेज से ही रस्टिकेट कर देंगे। ये आपके हाथ में है, देखना है। वहाँ जाकर ये सब काम नहीं करना है, वो मौका वो लेना नहीं है, फ़ायदा नहीं उठाना है उसका।
क्योंकि रात में भी हम लोग होटल में अलग अकेले हैं, आश्रम में रह रहे हैं, रात को दरवाज़ा खोल के कुछ लड़का लड़की मिल रहे हैं रात को कोने में, तो या तो ऑफ काम करते समय कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उधर भी हंसी मजाक हो रही है पेशेंट के सामने। ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमारे लोग घूमते रहते हैं। तो किसी प्रकार का आप नहीं है, जो वॉलंटियर आते हैं ना बाहर से, उनको भी हम लोग रस्टिकेट करते हैं, वार्निंग देते हैं, एक बार बिहेवियर नहीं बदला तुरंत वहीं से भेज देते हैं घर पे, कोई भी ट्रेन पकड़ के जाओ, यहाँ से आउट हो जाओ। क्योंकि हमारा कैंप का ना एक वातावरण बना के रखा है हमने, स्पिरिचुअल और सेवा भाव का एक एटमोसफेयर बना के रखा है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। अपना कुछ अलग रंग वहाँ पर डालना नहीं है, गलत रंग। वो जो एटमोसफेयर पैदा किया, कीर्तन करते हैं दिन भर 16 घंटा, ऑपरेशन करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, राधा रानी को प्रार्थना करते हैं, अधिक जप करते हैं हम लोग, क्योंकि धाम में जप करने से बहुत लाभ होता है। आप सब लोग वहाँ पर जप करो भगवान के नाम का, ये मौका मत गवाओ। सेवा भी 12 घंटा करनी है, फिर जप भी करना है आपको, तो कोई फालतू का काम करना ही नहीं है, गलत काम तो करना ही नहीं है, और कोई बेफुजल का काम भी नहीं करना है। क्यों वो डिसिप्लिन का एक्टिविटी आपके ऊपर होना चाहिए? दंड का काम आपके ऊपर क्यों होना चाहिए बताओ? हम लोग वहाँ दंड देने के लिए नहीं गए, हम लोग आपको मौका देने के लिए ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको वहां पर आए, आप गलती करें, फिर आपको हम दंड दे दें, वो हमारा पर्पज नहीं है। लेकिन दंड कभी देना पड़ता है, क्योंकि लोग सुनते नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि आपको दंड दें, हम चाहते हैं कि आपको केवल आशीर्वाद प्राप्त हो, लोगों का आनंद प्राप्त हो। तो हमारा आपको विनती यह है कि दंड देने का मौका ही मत दो आप, ऐसे व्यवहार करो कि आपको आशीर्वाद ही मिले सबका, और आप ऐसे भर भर के आशीर्वाद और आनंद का अनुभव लेकर आ जाओ वापस। ठीक है, अभी मेरा भाषण यहाँ समाप्त करता हूँ। और पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था है वहाँ पर, कोई कमी नहीं है, ब्रेकफास्ट में नहीं है, लंच में नहीं है, डिनर में नहीं है, भरपेट खाना सबको मिल रहा है, मिलेगा। और यात्रा की व्यवस्था की गई है, सुबह शाम प्रवचन की व्यवस्था की गई, पूरा लाभ लो आप एक साथ में। और कोई किसी का प्रश्न है तो पूछो मुझे आप। या 31 वाले बैच की यात्रा 7 तारीख को होगी। 7 तारीख को आप हमारे साथ घूमेंगे, हमने प्लान बना के रखा है कहाँ ले जाना है, मैं खुद ही आपके साथ में आऊँगा। और उसके बाद में आपका प्लानिंग जो भी है वृंदावन जाने का, उसके बाद का है। लेकिन हर एक वीक के बाद में एक यात्रा होती है। वो यात्रा कैसे होती है? शनिवार को दोपहर के बाद लंच के बाद में सेकेंड हाफ, और रविवार को फर्स्ट हाफ, 6 o'clock से लंच तक। और वो लोग फिर लंच के लिए वापस आते हैं, बैग भरते हैं, रूम खाली करते हैं और चले जाते हैं। और दूसरी बैच जो है वो शनिवार को या रविवार को मॉर्निंग में आ जाते हैं, टेक ओवर करते हैं। और ये जो सेवा किए हुए लोग हैं, उनको शनिवार के लंच तक सेवा करना है, और लंच में एक बार गए तो लंच के बाद में यात्रा शुरू हो जाती है, रात को आके सोना है, और फिर अगले दिन सुबह आपको और 6 बजे लेके जाएंगे। सब 2 पार्ट में, ताकि दिन भर थकने की जरूरत है, 2 पार्ट में करेंगे तो आपको बीच में रेस्ट भी मिलेगा। एक और सुंदर काम होता है वहाँ पर, वो है दीपोत्सव। पता है आपको दीपोत्सव क्या होता है? वहाँ पर बहुत पवित्र कुंड है राधा रानी के धाम में, पीली पोखर है, गहवर कुंड है, प्रेम सरोवर है, प्रेम विवल कुंड है, ऐसे बहुत सारे जलाशय हैं, उसके अच्छे घाट बने हुए हैं। तो हम लोग जाकर बीच में ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि आप सब लोग जाकर वहाँ पर पहले साफ़ करते हैं, फिर दीपक लगाते हैं, फिर तेल डालते हैं, फिर बाती डालते हैं, और उसको प्रज्वलित करते हैं। और फिर संध्या हो जाती है, अंधेरा होता है, तो इतना सुंदर दृश्य होता है वहाँ पर, इतना सुंदर। शाम को शुरू करते 4 बजे, 4 बजे लगाते 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 अंधेरा हो जाता है, और अंधेरा होने के पहले सब दीपक जलाते हैं। फिर हम लोग बैठते हैं और वहाँ पर कथा और कीर्तन करते हैं। वो अनुभव जो है ना, वो लोग भूल नहीं सकते। तो वो आपके एक हफ्ते में एक बार वो होगा। तो पूरा हफ्ता सेवा करते हैं, उनको एक बार ही ऐसा मौका मिलेगा। अगले हफ्ते में फिर एक बार कहीं और जगह पर होगा, फिर अगले हफ्ते में और एक जगह पर होगा दीपोत्सव। और दीपोत्सव जहाँ करते हैं वहाँ से हम लोग एक जगह जाएंगे और ब्रजवासियों के हाथ का भोजन खाएंगे। हाँ, एक दिन होगा कार्यक्रम। फिर ब्रजवासी लोग आपको भेंट देंगे, प्रेम की भेंट देंगे। जो हमारा परिवार है, जो हमको वहाँ पर संभालता है, जो हमारा यजमान परिवार है, वो आप सब लोगों को गिफ्ट देंगे, सब लोगों को। 1000-1500 लोग सब मिलके हो जाते हैं 3 हफ्ते में। लेकिन हर एक सेवा करने वाले बम्बई से आने वाले लोगों को वो गिफ्ट देते हैं। लड़कियों को साड़ी देते हैं, या ड्रेस सूट देते हैं, या कंगन देते हैं,
या राधा रानी का कुमकुम देते हैं, ऐसे गिफ्ट देते हैं। प्रभु जी लोगों को कोई धोती देते हैं, कोई कुर्ता देते हैं, कोई दुपट्टा देते हैं, और साथ में प्रसाद भी देते हैं, उनका घर का प्रसाद, लड्डू प्रसाद देते हैं, और डिनर प्रसाद भी खिलाते हैं उनकी तरफ से। इतना प्रेम का अनुभव वहाँ पर होता है, क्योंकि आपका आदर करते हैं कि आप लोग इतना दूर से आके हमारे गांव में आके सेवा कर रहे हो। So that is why they want to treat you. There also I tell you, when you go there, don't say कि you got suit, I got only this one and that one. No, what वो प्रेम की भेंट है आपकी, उसमें चॉइस नहीं करना है कि मुझे जो हरे रंग की चाहिए थी उसको ग्रीन रंग की दे दिया, उसको पिंक रंग का दिया, मुझे वो चाहिए था। Whatever they give is love. Accept the love. Don't think कि वो ग्रीन था, वो पिंक था, येलो था, मुझे धोती चाहिए थी, मुझे कुर्ता मिला, मुझे कुर्ता चाहिए था, धोती मिली। Just accept that love. Eat prasad, take the prasad, take their blessings and go. ठीक है? कोई प्रश्न है किसी का? मैडम ने पूछा, और कोई प्रश्न है? अभी पूछो आप, मैं आपका सब जवाब दूंगा, सब ओरिएंट करूंगा। That you don't worry, madam. That is our job. That we'll discuss separately. Because we are taking people to different places, not in the same places. So right now I don't have by heart where I'm going to take you on 7th. इस मेरे दिमाग में प्लान रेडी नहीं, बनाऊंगा उसका प्लान। यहाँ टाइम किधर है? वहाँ जाऊँगा 3 दिन तो सब प्लान बनाऊंगा, कहाँ ले जाना है, किधर जाना है। हर एक बैच को सेम जगह लेके जाने वाले नहीं है, अलग जगह लेके जाएंगे। इसका कारण भी है, मालूम है क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वॉट एवर लेक्चर्स आई गिव ना, those are all recorded like this and they go to YouTube. So suppose first batch I take to, suppose Pili Poker. So I give lecture there, it will go to YouTube. And second batch also I take to Pili Poker. So what will I speak? Same lecture I'll speak again. So what is the benefit? So suppose you go to Pili Poker, that is also on YouTube, but then other batch goes to Prem Sarovar, वो भी लेक्चर यूट्यूब में होगा। तो सुनने वालों को सब लेक्चर मिलेंगे अलग 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 जगह पे। इफ आई टेक देम टू सेम प्लेस, तो हर हफ्ते को सेम लेक्चर्स क्रिएट होंगे और सेम लेक्चर्स लोड होंगे, तो लोग जाए सुनने को जाएंगे तो अरे ये तो आपने सुना था, वापस प्रभु जी वही बोल रहे हैं। इसलिए हम लोग हर हफ्ते में डिफरेंट प्लेस में लेके जाते हैं, ताकि ओवरऑल जब आपका मेरा यूट्यूब आप देखेंगे मेरा, तो आपको पूरे 20 दिन के कैंप में आपको सारी कथाओं को सुनने का मौका मिलेगा। तो आप मेरे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूँ वो सब तुरंत रिकॉर्ड होके ऑन द स्पॉट चले जाता है, तो आप उसको सुन सकते हो। और कोई प्रश्न है किसी का? आने वाले हैं। ओके, मैं ये समझता हूँ कि आप सब लोगों को सब कुछ समझ में आया है, जो मैं आपको बताया हुआ है आपको समझ में आया है, और आपको ये मन में निष्ठा भी है कि मुझे फॉलो करना है, मुझे ये नियम तोड़ना नहीं है। ये भी मुझे आशा है कि आप लोग ने निश्चय किया होगा, और ये भी आपने निश्चय किया होगा कि बरसाना धाम की सेवा का पूरा लाभ मुझे उठाना है। सारी कथाएं वहाँ पर जो हो रही है वो सुनना है, और फालतू समय पे जाकर कीर्तन करना है, और अगर फ्रेश है तो कुछ ना कुछ करना है, लेकिन यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। ये भी आपने निश्चय किया होगा, ये मेरी आशा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।